اور جیسا کہ ان کے کسی دوست نے کہا تھا کہ ان کا کام ان کی تعلیم، ان کی کتابیں، اس سے جتنا آپ ہو سکیں اتنا انفلوئنس ہے. میرا تو الحمدللہ ایسا ایکسپیرینس تھا کہ میرے وہ والد صاحب تھے، لیکن جن کے پاس ان کی کتابیں ہیں، ان کے انفیکٹ اس کے متعلق ایک کہانی ہے. میرا اور ان کا تھیسس ایک ساتھ ہو رہا تھا. ہماری آرگیومنٹ چلی تھی. میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ میرے تھیسس پر آئے، انہوں نے کہا آپ میرے تھیسس پر آئے. ہم دونوں ایک دوسرے کے تھیسس میں نہیں جا سکے. وہ 1-2 دن آگے پیچھے تھا. میں اپنے سپروائزر سے بات کر رہی تھی. ان کو کراچی میں جو یہودی آبادی ہے ان پر کچھ کام کرنا تھا اپنے ایم فل کے لیے. تو میں نے ان سے کہا میرے پاس ایک بہت اچھا ریفرنس ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس بہت اچھا ریفرنس ہے. اور 15 منٹ تک ہماری بیک اینڈ فورتھ رہی. پتہ چلا ریفرنس ایک ہی تھا. ہم دونوں ابو کا ریفرنس دے رہے تھے ایک دوسرے کو. بہرحال بس. اور وہ اختر حسین بلوچ کے نام سے ہی ہو اور اس کی ایک تو کتابیں اس میں آ جائیں، اور دوسرا پھر جب بھی کوئی کتابیں آتی رہیں تو وہ ایک ریفرنس کے طور پہ. اور اس میں دوسرا جہاں وہ ٹیبل پہ بیٹھتا تھا تو وہ تو ویسے ہی اختر بلوچ کارنر ہو ہی چکا ہے، تو وہاں ایک اختر بلوچ کی اب تصویر بھی انشاءاللہ لگا دیں گے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس کی یادوں کا وہ اسی طرح چلتا رہے. اور کوئی اگر ادھورا کام ڈاکٹر صاحب بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اس کا رہ گیا ہے کہ کتاب اگر کوئی ابھی کمپائل ہونا جا رہی ہو اور اس میں کراچی پریس کلب کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ وہ کریں گے. میری طبیعت کوئی پچھلے کئی دنوں سے خراب تھی تو کرامت صاحب نے آج بہت ہی ڈنڈے مار کے مجھے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. کرامت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو میں آخر تک بیٹھتا. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اور دوستوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرح کا تعزیتی ریفرنس کراچی پریس کلب میں کہ جو اپنے اندر سے لوگوں کو یہ لگے کہ ایک دکھ اور افسوس اور اس میں لوگ آئیں، اس میں شریک ہوں، مطلب اپنے طور پہ کہ ہم نے کسی کو بلایا نہیں وہ خود آئے. تو اس طرح پریس کلب میں کم ہوا ہے. بہت سارے یہاں پہ بڑے لوگ جن کے نام تھے یہاں عہدیدار بھی رہے، لیکن کوئی 10-15 لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اختر کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے جو لوگ ہیں تو یہ اختر کا مختلف لوگوں کے ساتھ اس کا اپنا حسن سلوک، اپنا انٹریکشن اور جو اس کا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے اور علم و ادب کے لیے، تو اس کو ظاہر ہے آپ تمام لوگ خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، اس کے کام کو خراج تحسین پیش کرنے آئے. کہ کسی دن میں بہت صبح سویرے آ گیا تو اسی وقت میں نے دیکھا کہ اختر بھی یہیں گھوم رہا ہے. اور رات کو اگر آپ بہت تاخیر سے 2 بج گئے 2:30 بج گئے تو اختر بھی یہاں موجود. تو اس لحاظ سے پریس کلب کے ساتھ اس کا جو ایک بالکل اس نے اس در و دیوار کا اپنے آپ کو حصہ بنا لیا تھا. اور اس پہ یقینی طور پہ فیملی تو سفر کرتی ہے. ہم اپنے تمام دوستوں سے کہتے ہیں، خود بھی ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم پریس کلب کو دیتے ہیں، فیملی کو نہیں دے پاتے. تو ایک یہ ظاہر ہے ایک انسانی رویے ہے، اس میں شکایات کو پیدا ہوتی ہیں. اور اختر کی بھی فیملی کو یقینی طور پہ اس کے بچوں کو بھی اس کے ساتھ شکایات ہوں گی. لیکن اختر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ٹارگیٹ اورینٹیڈ آدمی تھا. اس نے زندگی میں اپنے لیے جو بھی ٹارگیٹ سیٹ کیے. کراچی پریس کلب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں مدد فرمائی. اس کے بعد سارے دوستوں کا جنہوں نے آ کے یہاں پر اپنے تجربات شیئر کیے ان کا شکر گزار ہوں. اختر بلوچ میرا بھائی، میرا دوست، اور ایک چیز جو شاید کم لوگ جانتے ہیں یہ ہے وہ میرا استاد. جب میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں آنے سے پہلے میں پولیٹیکل کارکن تھا. مجھے نہیں پتا تھا NGO سیکٹر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے کام ہوتا ہے، فیکٹ فائنڈنگ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے مسائل پہ بات کی جاتی ہے، اٹھایا جاتا ہے. تو جب میں آیا ہوں تو اختر اس وقت
और वो सिंध के कोऑर्डिनेटर। तो मैं सिर्फ एक ज़िले का छोटे से डिस्ट्रिक्ट सेंटर का कोऑर्डिनेटर था, उसमें भी मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसे मुझे बता दिया ऐसा बैठे। बाद हॉस्पिटल में लेके आए, मैं इससे वैसे ही लगा मैंने यार कुछ वेट कम कर लें और खाने पीने में थोड़ी एहतियात कर लें। ये मीरपुर खास से बिलिंग करता है, मैं डिस्ट्रिक्ट उमरपुर से बिलिंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला यार आपकी ज़बान जो है घाट की, उसमें मैंने एक किताब लिखी है, मैं आपको गिफ्ट करूँगा, तो आप आगे इनको अर्सी कर दे रहे हो। मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है। एक उर्दू में तो बहुत सारे दोस्तों ने भी एक डाक की ज़ुबान में तर्जमा करके किताब में पहली बार मरहूम अख्तर साहब ने लिखी थी, जिसका मैं इनके रिश्तेदारों से कहूँगा कि अगर वो उसकी वजह हो तो हमें भी एक तोहफा दे दें। मैं आप साथियों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दिली गरी से तहजीब करता हूँ इनके रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मेरा और अख्तर का ताल्लुक जुड़ा और मैं शायद ये समझता हूँ कि जो ताल्लुक मेरा और अख्तर का रहा वो शायद इस हाल में बैठे हुए लोगों का उसके साथ ना रहा। उस वक्त मैं गालिबन 16-17 साल का लड़का था। अम्मी को बड़ी परेशानी रहती थी कि इतना भारी भरकम सा एक बलोच मेरे बच्चे को लेने आता है, मोटरसाइकिल पर ले जाता है। तो मेरे घर से थोड़ा सा दूर एक मस्जिद के दरवाजे पर अख्तर आकर बैठ जाता था और मैं वक्त का पता होगा अख्तर से वहाँ जाकर दिन में थोड़ा देर तो चक्कर लगाया, तेरे घर आने के डर और पेशाब से मेरा हाथ, मैंने कहा दरवाजे पर इसमें क्या बात है, फिर मैं इतना बड़ा अल्लाह ताला लगाया रहा है। इसी जगह पर मेरी किताब की मुहूर्त हो रही थी सिद्धि में मंजन सूरत अदा करो, तो इस कोने पर अख्तर बलोच बैठे थे। और ये इत्तेफाक की बात है कि उस किताब को ज़्यादा पढ़ा गया तो उर्दू बोलने वालों ने और पंजाबी दोस्तों ने अप्रोच की कि इसका उर्दू में तर्जुमा होना चाहिए। मैंने मालूम किया कि तर्जमे के बाद किताब की जो असल रूह हो जाती है होती है वो उमूमन नहीं रहती। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि वो जो आपके सामने बैठा है अख्तर बलोच, आप इससे रब्ता करें। उनके जो करीब थे उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पे उनकी ज़िंदगी की रोशनी डाली और मोहब्बतें तो यहाँ एक झलक नज़र आई। मेरा ख्याल है ये बहुत छोटा पड़ गया आज का ये हॉल जो था। बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो बाहर भी मौजूद हैं। जितना बड़ा मैं कहता हूँ इंसान था अख्तर बलोच, उसकी आज जो कुछ यहाँ बातें हुई एक झलक थी सिर्फ उसमें। मैं कई जगह सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, अख्तर भाई से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा और जब भी मतलब मैंने उनके अंदर जो एक ख़ास अल्लाह ताला का मैं कहता हूँ इंसानों पे करम की बहुत सारी शक्लें होती हैं और उसमें एक शक्ल ये होती है कि आप किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, खुश होकर बात करते हैं। तो हर इंसान में ये क्वालिटी नहीं होती और ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने अख्तर भाई को दी थी कि वो जिससे भी बात करते थे हंस के बात करते हुई है। वही दिन से हम एक दूसरे की फैमिलीज के साथ हमारा आना जाना है। तो ज़ाहिर जो फैमिली के मसाइल होते हैं, फैमिली की खुशियाँ होती हैं, चाहे वो मेरे घर की हो या हमारे ज़ाती मसाइल हो, उसमें था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि उर्दू ज़बान पर उन लोगों का एहसान बहुत ज़्यादा है जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है और उसमें अख्तर ने बड़ा रोल प्ले किया है। उसकी उर्दू की लिखत और उसका उर्दू बोलने का जो तरीक़ाकार था वो एक बलोच होने के बावजूद, एक सिंधी ज़बान, डिफरेंट ज़बानें बोलने के बावजूद उसका ये एहसान रहेगा इस ज़ुबान के ऊपर। और वो जो तहकीकी किताबें हैं वो सिर्फ तहकीकी किताबें नहीं हैं, उसमें उर्दू का जो एक चस्का है उर्दू अच्छे पढ़ने वालों को वो हमेशा उसमें से उसको मिलेगा। दुख बहुत ज़्यादा है लेकिन बार बार ये ख्याल आता है कि जो अगर वो हम में से कोई गुजर जाता या गुजरे जो दोस्त, उसको उनका दुख ज़रूर करता था लेकिन उसमें से भी वो एक पहलू निकालता था जो मरने वाले की शख्सियत से खुशी के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं नहीं निकाल पा रही उसकी
और पाकिस्तान में एक नेटवर्क बनाना चाहिए एक्टिविस्ट्स का और को ग्रुप्स का कि जो बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर रिपोर्टिंग कर सकें जो वायलेशंस हो रही हैं इंसानी हुकूक की और लोगों में आगाही भी फैलाएं। तो ये इनिशिएटिव आई रहमान साहब और हुसैन नकी साहब का था और अख्तर बहुत शुरू में HRCD में शामिल हुए और मेरे ख्याल से उनकी शोहरत जर्नलिस्ट की हैसियत से और राइटर की हैसियत से बाद में हुई। पहले मेरे ख्याल से पूरे सिंध में उनकी जो शोहरत थी वो थी एक इंसानी हुकूक एक्टिविस्ट के हवाले से। और यहाँ जब मैं घर पे गया तब भी बहुत सारी किताबें, शायद हमारे घरों में अब ये इशू भी आ रहा है कि भाई आपकी किताबें हम कहाँ रखें, और वो अख्तर के घर में भी ये इशू होगा कि इनकी किताबें कितनी रखें। घर हमारे छोटे छोटे हैं लेकिन किताबें हमारे पास ज्यादा होती हैं, तो ये एक है। तो इससे एक अंदाजा होता है कि आदमी ये इस वक्त मैं इस हाल में आया हूँ, मैं अभी तक ना फर्स्ट फ्लोर गया हूँ ना कराची प्रेस करवाया, और मेरी उनसे ज़्यादा बहस व मुबाहिसे वाली दोस्ती तो थी नहीं, लेकिन रेफरेंस की ज़रूर बात थी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारों का जो तारीखदान बनने की कोशिश कर रहे हैं या हिस्ट्री पे लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी एक रेफरेंस लाइब्रेरी का खात्मा हो गया। वो खात्मा इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी बातों को, उसके मिशन को हम दावे तो बहुत करेंगे, कोई आगे लेकर नहीं जाएगा। उसके पास वो नहीं रहे जो इस शहर का मौसम था, जमशेद मेहता, जो किसी घोड़े को और गधे को भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। उस जमशेद मेहता के भी सारी निशानियों को इस बुनियाद पे मिटाया जाता है कि वो शायद मुसलमान नहीं था। जैसे भाइयों ने बात की कि वो कायद आज़म को हलफ एक नहीं लेना था मगर वो अब्दुल रशीद साहब आ गए, तो ये बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था, मेरा एहसान था। ना हंसता मुस्कुराता दोस्त जो हमेशा जब भी बात करता शराफत की करता, हंसी की करता, वो अपने हवाले से एक मुकम्मल एक जिंदा इंसान था। आज के लोग तो यहाँ पर करोड़पति अरबपति होते हैं मगर वो उनकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं था। वो ऐसा फकीर था जो हर जगह जाके इल्म की, जैसे एक प्रोफेशनल आदमी जो हर फील्ड में, जो सहाफ़ी भी रहे, जो लिखाने के रहे, जो दोस्त मुकम्मल तौर जो एक प्रोफेशनल आदमी था, उसके लिए मैं कुछ अल्फाज बोलूँ मगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा दिल जख्मी है यार, क्योंकि अख्तर बलोच साहब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सहाफ़ी, अपने दोस्तों के रवैयों की वजह से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कई काफ़ी दोस्त हैं, उनकी रवैयों की वजह से बीमार तो वो था मगर वो आखिरी दिनों में दोस्तों की बिल्कुल ऐसे बहुत प्यारे दोस्त थे, वो हैदराबाद से करती है। उन्होंने कहा भाई ये, मैंने कहा भाई हमारी किताबें हैं, हम फकीरों का और तो है कोई कुछ भी नहीं, ना मिल्कियतें, ना कोई ट्रैक्टर, ना ट्रालियाँ, ना कोई MNA कोई MP है। पर आधी तो उन्होंने ज़ाया कर दी, आधी मैंने बंद कर दी, पढ़ना बंद कर दी, फिर उसने हाथ लगाना छोड़ दिया। तो अब हम प्रेस क्लब में या कई छुपके किताबें पढ़ते हैं। दूसरी बात बिल्कुल सच्ची है कि बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अख्तर साहब के इंतकाल के दूसरे दिन मुझे ARY के एक दोस्त का फोन आया, मुझे कहा तो अख्तर और मैं, अख्तर साहब अकेले भी जाते रहे थे वहाँ पर तलाश करने, लोगों से पूछते थे कि गुरु मंदिर कहाँ पर है, और एक दो बार हम साथ गए। तो इसी तरह एक वाक़या ये था कि जितने भी वहाँ पर मंदिर हमें मिले उसमें से गुरु मंदिर कोई भी नहीं था। और एक दिन इसी तलाश में एक पान वाले के पास हम खड़े हुए और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं इस नाम का कोई मंदिर नहीं है। जो भी मंदिर वो हमें बता रहे थे वो ऑलरेडी हमें पता थे कि पंचमुखी मंदिर है सुल्तानगुजार में, और इसी तरह जो है वो राम के नाम से हैं या दूसरे इनके जो डाइटीज उनके नाम से। तो इत्तेफाक एक गली से हम जैसे ही गुजरे तो एक नज़र पड़ी हमारी एक बिल्डिंग पे जिस पर लिखा हुआ था गुरु मंदिर, और उसी में हम गए और पहली मरतबा हमें पता चला कि ये गुरु मंदिर एक बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट ऑफिस की सूरत में कन्वर्ट हो गई है,
और उस पर उन्होंने फिर एक डिटेल से जो है ब्लॉग भी लिखा और अपनी किताब में एक आर्टिकल भी लिखा। तो अख्तर से जितनी भी वाबस्तगी रही, जो भी हालात शिकार रहे आजकल उनका एक शागिर्द दोस्त शोएब मेहरानी जो बल्दिया टाउन में उनसे मुतारफ हुआ था, आजकल वो भी पुरस्कार तौर पर लापता है। ये एक अजीब सी बात है। अल्लाह इन लोगों को अपने जवाब रहमत में जगह दे और इनके जो काम को आगे बढ़ाने की उपज है वो दोस्तों में पैदा करे और किताब से